Very good morning, students. This is Anup Sir, your English teacher. Students, in this video, we are going to understand our lesson number 3 from our grammar book. That is, noun and adjective clause and complex sentence. That is from our junction book. Alright, but before we begin with our lesson, that is our main topic, we have to understand what is coordinate clause and what is subordinate clause. Alright, so to understand what is noun clause, adjective clause or adverb clause, first of all we will have to understand the basics. Alright, so let's check out what is coordinate clause. A clause that makes a complete sense and can stand on its own as a sentence is called a coordinate clause. So students, coordinate clause is also called main clause or independent clause. Now from the word main clause and independent clause, we can understand that this clause makes the whole sense. Alright, it does not depend upon another word or sentence to complete its meaning. So first of all, let me tell you, a clause has a subject and a predicate in itself. Alright, so a coordinate clause is something that makes the complete sense. Okay, a coordinate clause can be a sentence itself. So as I told you that a coordinate clause makes the whole sense, so coordinate clause can even be a sentence itself. Alright, a coordinate clause can combine with one or more clause to form a bigger sentence. Alright, so as I told you earlier, you might remember that a sentence has a subject, predicate and an object. Alright, so a single sentence has a subject, that is a simple sentence has one subject and one predicate. But a complex sentence can have more than one subject, more than one predicate. Alright, so यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, ये मेन क्लॉज होता है, खुद से ही कंप्लीट सेंस बनाता है. ऑलराइट, सो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, और एक बड़ा सा सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं. गॉट इट? Let us try to check out one example given over here. The Maldives is a beautiful island which has many beaches. Now this is a whole sentence. This is one sentence that gives two ideas. ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दो आइडियाज़ है. कैसे? मालदीव एक ब्यूटीफुल आइलैंड है और दूसरा आइडिया क्या है? मालदीव्स के अंदर बहुत सारे बीचेस हैं. गॉट इट? नाउ दिस होल सेंटेंस हैज़ वन कोऑर्डिनेट क्लॉज. और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले हमें दिमाग में क्या रखना है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट सेंस बनाता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट. अगर केवल और केवल हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे ना तो हमें सेंटेंस का पूरा मतलब पता चलेगा. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. द मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड विच हैज़ मैनी बीचेस. इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस के अंदर यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं. दिस सेंटेंस इज मेड आउट ऑफ टू आइडियाज़. गॉट इट? तो अगर हम इस पार्ट को पढ़े विच हैज़ मैनी बीचेस, जिसके बहुत सारे बीचेस हैं, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता. ठीक है, नाउ हियर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. द मालदीव्स इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड. तो यहाँ पे केवल अगर हम ये पार्ट पढ़ें तो हमें कंप्लीट मतलब पता चलता है कि मालदीव्स एक ब्यूटीफुल आइलैंड है. ठीक है, इसके अंदर द मालदीव्स सब्जेक्ट है, इज़ अ ब्यूटीफुल आइलैंड प्रेडिकेट है. गॉट इट? तो ये हमारा बनता है कोऑर्डिनेट क्लॉज. गॉट इट? कंप्लीट मतलब बताता है, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज. गॉट इट? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ and depends upon main clause is called a subordinate clause. तो subordinate clause कौन सा होता है? जो complete मतलब नहीं बताता है और कहीं ना कहीं subordinate clause को अपना मतलब पूरा बताने के लिए coordinate clause पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. मतलब कि main clause पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. जब सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज होगा तभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का पूरा मतलब हमें पता चलेगा, वरना हमें मतलब पता नहीं चलेगा. Now next point,
A subordinate clause usually starts with the help of words such as that, why, when, what, how, if, who, which, where, because, since, as. Alright, तो subordinate clause है ना, इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से पहचान पाओगे कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है. अगर क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड आउट इट इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज और नॉट. ऑलराइट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पूरा सेंस नहीं बताता, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज. इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा ही होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अ सबॉर्डिनेट क्लॉज टेल्स अस मोर अबाउट द मेन क्लॉज. सबॉर्डिनेट क्लॉज कहीं ना कहीं मेन क्लॉज को डिस्क्राइब करता है, कुछ ना कुछ मेन क्लॉज के बारे में बताता है. ऑलराइट, लेट अस ट्राई टू चेक आउट एन एग्जाम्पल. वही सेम एग्जाम्पल, ठीक है. द मालदीव्स इज़ अ ब्यूटिफुल आइलैंड. अगर हम सेंटेंस को इतना पढ़ते हैं हमें कंप्लीट मतलब पता चलता है. सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये हमें पूरा मतलब बता रहा है. अब सेंटेंस का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, विच हैज़ मैनी बीचेस. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है वो हमें मेन क्लॉज के बारे में और बता रहा है, उसी मालदीव्स के बारे में हमें और डिटेल दे रहा है. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो कौन सा है? ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. और दूसरा एक और तरीका, सबॉर्डिनेट क्लॉज किन वर्ड से स्टार्ट होता है? इन वर्ड से स्टार्ट होता है. ठीक है, विच. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में विच से स्टार्ट हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, मेन क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस बनाएगा और सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस बताएगा हमें. सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट्स, एज आवर लेसन्स नेम इज नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हमने ये देख लिया क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हमें वो भी समझना पड़ेगा. ठीक है, बाकी चीज़ें समझने से पहले. नाउ हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गिवन हियर. A sentence that is a combination of a main clause and one or more subordinate clause is called a complex sentence. तो complex sentence क्या होता है? complex sentence वो होगा जिस sentence के अंदर एक तो main clause होगा, उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा subordinate clauses होंगे. तो यहाँ पे जो हमारा ये एग्जाम्पल है इसके अंदर एक तो हमारा मेन क्लॉज है, दूसरा हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज. तो इसका मतलब ये सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. गॉट इट? इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, दूसरा एक जो है वो है सबॉर्डिनेट क्लॉज. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे डेफिनेशन में दिया है वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो इस सेंटेंस में एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं. गॉट इट? नाउ लेट्स चेक आउट एन एग्जाम्पल गिवन हियर. द वॉल that was built around the house kept the intruder away. ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्लॉज कौन सा है? मेन क्लॉज है the wall kept the intruders away. ठीक है, तो यहाँ पे the wall subject kept the intruders away predicate. ठीक है, ये हमारा बन जाता है मेन क्लॉज. सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? that was built around the house. ये हमारा है सबॉर्डिनेट क्लॉज. गॉट इट? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? एक मेन क्लॉज होगा, उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होंगे, वो हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, अब एक और चीज़, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं. दोज आर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. तो सबॉर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं और वो 3 टाइप्स है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. तो हमारा जो ग्रामर टेक्स्ट बुक के अंदर लेसन नंबर 3 है वो है नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, और लेसन नंबर 4 है वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज. तो हम इस वीडियो के अंदर हम लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 दोनों साथ में सीखने वाले हैं क्योंकि दोनों कनेक्टेड है.
क्यों? क्योंकि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हम ये तीनों सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमारा लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 आ जाएगा। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउन क्लॉज फर्स्ट। नाउन क्लॉज क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन, पॉइंट्स, एग्जाम्पल सब कुछ दिए हुए जो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या है? A noun clause is a subordinate clause that functions like a noun in the sentence. तो यहाँ पे नाउन क्लॉज क्या होता है सेंटेंस के अंदर? नाउन क्लॉज वो होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है। अब नाउन क्या होता है? नाउन आर दी नेमिंग वर्ड्स, ऑलराइट। तो अ नाउन क्लॉज इज़ अ सबॉर्डिनेट क्लॉज। हमने यहाँ पर पहले देखा है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या है? एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर नाउन के जैसे काम करता है। मतलब नाउन क्या काम करता है हमें पता है, नाउन आर दी नेमिंग वर्ड्स। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? अ नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद वर्ड्स सच एज दैट, हाउ एंड WH वर्ड्स। अब WH वर्ड्स कौन से होते हैं? हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज सेंटेंस के अंदर जब भी स्टार्ट होगा वो इन वर्ड से स्टार्ट होगा। ये वर्ड्स है दैट, हाउ, हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ऑलराइट, तो नाउन क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ नाउन क्लॉज कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। अब स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम वो चीज़ की बेसिक देख लेते हैं। सेंटेंस के अंदर जो भी डूअर होगा या फिर जिसके बारे में बात हो रही होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो भी वर्क सेंटेंस के अंदर होता है दैट इज़ द प्रेडिकेट। और जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता है तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसके ऊपर असर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे नाउन क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज प्रूव्ड बाय द लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा है दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज प्रूव्ड बाय द लॉयर। इस सेंटेंस के अंदर हमें नाउन क्लॉज ढूंढना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, नाउन क्लॉज हमारे इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दैट से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट? और इस सेंटेंस के अंदर क्या प्रूव हुआ? मतलब जो हमारा वर्ब है प्रूव्ड, और यहाँ पे नाउन क्लॉज हमारा इस वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। गॉट इट? दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और एक और चीज़, हम नाउन क्लॉज सेंटेंस के अंदर ढूंढना चाहें तो हम सेंटेंस से व्हाट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, दैट ही वॉज इनोसेंट वॉज प्रूव्ड बाय द लॉयर। व्हाट वॉज प्रूव्ड? दैट ही वॉज इनोसेंट, यानी जो हमारा आंसर निकलेगा वो बन जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, अ नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वो वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट और इसके अंदर जो नाउन क्लॉज है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा इज सेइंग दैट शी विल मीट मी टुमारो। अब यहाँ पे सबसे पहला तरीका हमारा नाउन क्लॉज ढूंढने का मैंने बताया था, इन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो दैट, तो यहाँ पे दैट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सीमा इज सेइंग दैट शी विल मीट मी टुमारो। सीमा इज सेइंग व्हाट, जो आंसर निकलता है वो हमारा नाउन क्लॉज होगा, दैट शी विल मीट मी टुमारो। ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन क्लॉज है वो हमारा वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अ नाउन क्लॉज कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउन क्लॉज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अ सोल्जर इज़ वॉट आई वॉन्ट टू बिकम।
तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका नाउन क्लॉज ढूंढने का फिर से वही हम देखते हैं कि कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, किससे, इज से, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, क्या, व्हाट इज़, व्हाट आई वांट टू बिकम। तो जो आंसर निकलता है वो हमारा बन जाता है नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन क्लॉज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। गॉट इट? द लास्ट वन, अ नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? वो वर्ड्स जो पोजिशंस बताते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट नीडेड टू बी डन, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? थिंकिंग, और हमारा प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नाउन क्लॉज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये हमारा प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हमारा नाउन क्लॉज है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, वापस हम व्हाट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। व्हाट आई वॉज थिंकिंग व्हाट नीडेड टू बी डन, हमारा आंसर है कि मैं क्या सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था कि क्या करना है, वो हमारा नाउन क्लॉज बन जाता है। गॉट इट? एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। नाउन क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है, इन वर्ड से स्टार्ट होता है। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा है, यही चीज़ तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है, यू कैन सी दैट, और मैं ये PDF भी तुम लोगों को सेंड करूँगा। नेक्स्ट वन, नाउन क्लॉजेज इन अपोजिशन। अब नाउन क्लॉज इन अपोजिशन क्या होता है? इफ़ वी लीव आउट द नाउन क्लॉज when it is used in opposition the sentence will still make complete sense। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंदर में से हम नाउन क्लॉज को हटा दें और बाकी के पार्ट को अगर हम रीड करते हैं तो भी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो पूरा मतलब हमें बताएगा। हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। द रूमर दैट ही वाज डेड टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। अगर हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है और हमें ढूंढना है कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है, तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो नाउन क्लॉज है वो इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा दैट, ठीक है। दूसरा तरीका एक और वापस चेकआउट करते हैं, हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या? द रूमर दैट ही वाज डेड टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, ठीक है। व्हाट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स? तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो आंसर है दैट ही वाज डेड, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है नाउन क्लॉज, ठीक है। अब इस नाउन क्लॉज को अगर हम नहीं पढ़ के हम बाकी के सेंटेंस को पढ़ते हैं, द रूमर टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, तो भी हमारा ये क्या सेंटेंस कंप्लीट मतलब बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाउन क्लॉज है जिसे हम हटाने के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट मतलब बताए, ऐसे नाउन क्लॉज को हम कहते हैं नाउन क्लॉज इन अपोजिशन, ठीक है। डिड यू गेट दैट? So students, now let us try to understand adjective clause. What is an adjective clause? An adjective clause is a subordinate clause that functions like an adjective. एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप 2 हमने यहाँ पर देखा था। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर ऑफ 3 टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो सेंटेंस के अंदर क्या एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, और एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक बार ग्रामर बुक्स में ये चीज़ को रेफ़र कर लो कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तभी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का क्या काम है सेंटेंस के अंदर? वो एडजेक्टिव के जैसे ही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एडजेक्टिव क्लॉज कम्स आफ्टर द नाउन दैट इट क्वालिफाइज। हमेशा सेंटेंस के अंदर क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज है वो नाउन क्लॉज के बाद में आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एन एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, हुम, वेयर, ये वर्ड से नॉर्मली जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो स्टार्ट होंगे। लेट अस ट्राई टू चेक आउट एन एग्जाम्पल। दिस इज़ द ऑफिस वेयर आई वर्क।
अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने देखा था एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन को डिस्क्राइब करना। तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है? ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफिस की बात कर रहे हैं। दिस इज़ दी ऑफिस, ये ऑफिस है, लेकिन ये कौन सा ऑफिस है? वेयर आई वर्क। तो कहीं ना कहीं ये जो वेयर आई वर्क है वो इस ऑफिस के बारे में और डिटेल बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। गॉट इट? तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। और दूसरा तरीका रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे। गॉट इट? नाउ और नाउन क्लॉज इज़ क्लियर। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक है हमारे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये इम्पॉर्टेंट है। गॉट इट? नाउ व्हाट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज? एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है कि हमारा एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में वो होगा जो एडवर्ब के जैसे फंक्शन करेगा। एडवर्ब का फंक्शन क्या है? वो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। गॉट इट? एन एडवर्ब क्लॉज यूजुअली स्टार्ट्स विद कंजंक्शंस सच एज ऑल्दो, बिकॉज, इफ, अंटिल, व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है वो ऐसे कंजंक्शन से नॉर्मली स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था? एडवर्ब क्लॉज का फंक्शन क्या है? या तो वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, या एडवर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। तो इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब को डिस्क्राइब करता हो, एक ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता हो, और फिर लास्ट में एक ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करता हो। ऐसे हम 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। He stopped when he saw the red signal। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? He stopped when he saw the red signal। इस सेंटेंस के अंदर stopped हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? हमारा एडवर्ब क्लॉज when he saw the red signal। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? when did he stop, वो कब रुका? जब उसने रेड सिग्नल देखा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो ये एडवर्ब क्लॉज है वो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? कंजंक्शन व्हेन। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉक्स इज हैवियर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हमारा जो हैवियर है वो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, बॉक्स को। ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है वो हमारे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे? द बॉक्स इज हैवियर, बॉक्स हैवियर है। कितना हैवियर? देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो हैवियर को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? कंजंक्शन देन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, शी डांस्ड सो ग्रेसफुली दैट ऑल द जजेस प्रेज्ड हर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लॉज है वो हमारे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे? सी डांस्ड, कैसा डांस किया? ग्रेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है दैट ऑल दी जजेस प्रेज्ड हर, कितना ग्रेसफुली डांस किया? उतना ग्रेसफुली कि सभी जजेस ने उसको प्रेज किया। तो ये हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है ये कहीं ना कहीं हमारे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। गेट इट? तो हमने तीनों टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे एडवर्ब क्लॉज के कुछ टाइप्स हैं, वो क्या है, कैसे है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने एडवर्ब क्लॉज समझ लिया, एडवर्ब क्लॉज किसको डिस्क्राइब करता है वो यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स देखते हैं। नंबर 1, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो उस सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन हुआ होगा उसका वक्त बताएगा, उसका टाइम बताएगा। An adverb clause of time begins with words such as when, whenever, before, after, as soon as, no sooner than। तो हमारे जो adverb clause of time है वो इन words से start होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, Ruma went home when it was almost dark। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? went। Ruma went home, वो घर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो घर कब गई?
जब लगभग अंधेरा हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है हमारे सब्जेक्ट के द्वारा, उस एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसका एक्शन किस टाइम पे हुआ, उसके घर जाने का किस टाइम पे हुआ, जब ऑलमोस्ट डार्क हो चुका था। गॉट इट? तो दिस एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या होगा? एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड। नंबर 1 था हमारा जो भी सेंटेंस के अंदर एक्शन है यानी वर्ब है उसका टाइम बताएगा। नंबर 2 के अंदर एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा? जो भी सेंटेंस के अंदर एक्शन है यानी वर्ब है उसकी जगह बताएगा, प्लेस बताएगा। ठीक है, एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बिगिंस विथ वेयर और वेयर एवर। इन 2 वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। गॉट इट? एग्जाम्पल देखते हैं। अश्विन विल गो वेयर द बैटल वॉज फॉट। तो अश्विन विल गो, यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अश्विन जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, कौन सी जगह पर जाएगा, कौन सी प्लेस पर जाएगा? वेयर द बैटल वॉज फॉट। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो प्लेस है वो हमें हमारे वर्ब की प्लेस बता रहा है। कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? ये वर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीज़न। तो यहाँ पे क्या होगा? एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीज़न टेल्स अस व्हाई एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या रीज़न क्या करेगा? जो भी सेंटेंस के अंदर एक्शन हुआ है उसका रीज़न बताएगा कि वो एक्शन क्यों हुआ। ठीक है, इट बिगिन्स विथ वर्ड्स सच एज बिकॉज, सिंस, एज। इन वर्ड से लगभग वो स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड नॉट अटेंड क्लास एज ही वॉज अनवेल। उसने क्लास अटेंड क्यों नहीं की? क्योंकि वो अनवेल था। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो रीज़न है हमारा वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? एज से। ठीक है, और कहीं ना कहीं रीज़न बता रहा है कि उसने ये एक्शन क्यों नहीं किया। वाई कुड नॉट अटेंड क्लास। ठीक है, एज ही वॉज अनवेल। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पॉइंट्स और हैं, देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस टेल्स अस व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इन द मेन क्लॉज। तो उस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है, वो एक्शन परफॉर्म करने का रिजल्ट क्या रहा या कॉन्सिक्वेंस क्या रहा वो हमें बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्पोक विथ सच अथॉरिटी दैट नो वन क्वेश्चनड हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? शी स्पोक, वो बोली, लेकिन वो कैसे बोली? ऐसे अथॉरिटी के साथ, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोली कि किसी ने उससे सवाल नहीं किया। तो यहाँ पे उस लड़की ने जो भी एक्शन किया, बोलने का जो एक्शन किया, उस बोलने के एक्शन के बाद में रिजल्ट क्या रहा कि उसने इस तरीके से बात की कि किसी ने उससे सवाल ही नहीं किया। नाउ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस द रिजल्ट ऑफ द एक्शन परफॉर्म्ड इन द मेन क्लॉज। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ठीक है, पर्पस यानी हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं एम। ठीक है, तो एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस टेल्स अस व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन मेंशन्ड इन द मेन क्लॉज। तो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब होगा यानी जो भी एक्शन होगा वो एक्शन करने का मकसद क्या है, एम क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन पर्पस एंड रीज़न। रीज़न और पर्पस दोनों बहुत अलग चीज़ है। रीज़न होता है कारण, क्यों किया जा रहा है, और पर्पस होता है कि उसका मकसद क्या होता है करने का। ठीक है, लेट्स चेक आउट एन एग्जाम्पल। ही रीड्स सो दैट ही मे गेन नॉलेज। वो पढ़ता है। ठीक है, ये एक्शन किया जा रहा है, हमारा वर्ब है, वो पढ़ता है। वो क्यों पढ़ता है, उसका मकसद क्या है? ताकि उसको नॉलेज गेन हो, दैट ही मे गेन नॉलेज। यहाँ पे हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो पर्पस है वो क्या बता रहा है? जो एक्शन है उसका हमें इन बता रहा है। नाउ द लास्ट वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। Adverb clause of condition tells us the circumstances in which an action will be performed.
तो यहाँ पे क्या है कि जो भी सेंटेंस के अंदर एक्शन है ना, वो एक्शन होने का कंडीशन या फिर एक्शन होने का सिचुएशन हमें बताता है कि कैसे सिचुएशन में या किस वजह से किस कंडीशन में वो एक्शन हुआ। हम एग्जांपल देखते हैं, अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू कैन नॉट स्टे फिट। तो यहाँ पे फिट रहने का कंडीशन क्या है, टू स्टे फिट का कंडीशन क्या है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली यू कैन नॉट स्टे फिट। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो कंडीशन है वो कंडीशन किस चीज़ की बता रहा है, टू स्टे फिट। गेटिंग इट? दिस इज़ आवर लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4। तो इस वीडियो के अंदर हमने लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 दोनों कंप्लीट कर लिए। ये वीडियो अच्छे से देख लेना, इसका PDF सेंड करूँगा, और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर दोज डाउट्स। चलो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।